Hi everyone, hope you are all doing well. In today's lecture, we will discuss about the kernel map or the K-map technique. We can easily reduce our Boolean expression by using the K-map technique. Basically, K-map is used to simplify Boolean expression. So this is a very important topic in digital logic design. So we can simplify our Boolean expression by using two different techniques. The first one is a Boolean algebra rules and the second one is a K-map technique. So if we simplify our expression using Boolean algebra rule, so it doesn't guarantee the simplest form of expression. So it means if we simplify our expression with using rules, then we may not sure that our reduced expression is in simplified form and terms are not obvious. So if you use Boolean algebra rules, so you need skills of applying the rules and the laws. And the second one is a K-map method. So K-map provide a systematic method. So an array of cells are used in K-map, and this method is used to simplify 2, 3, 4, and 5 variable expression. So K-map technique is feasible if the variable in the expression are less than 5 or equal to 5, but if the variable in the expression are more than 5, then so it's difficult for us to implement the K-map technique for the expression that contain the variable that are more than 5. K-map is a collection of squares. So square represent a minterm. The collection of squares is a graphical representation of the Boolean expression, and the adjacent square differ in the value of one variable. It means that in K-map we follow the gray code, and the algebraic expression are the derived by recognizing the pattern of the squares. So K-map can be viewed as a reorganized version of the truth table. So each minterm in a truth table corresponding to a cell in the K-map. K-map cells are labeled so that both horizontal and vertical movement differ only in one variable. Once a K-map is filled with zeros and ones, we fill the K-map with ones if the expression is given in SOP form. So once the K-map is filled, the SOP expression for the function can be obtained by ORing together the cell that contains the ones. Since the adjacent cell differ by only one variable, they can be grouped to create simpler term in a sum of product expression. So each minterm in a truth table corresponding to a cell in a K-map, इट्स मीन कि हमारे पास ट्रुथ टेबल में जितनी भी एंट्रीज होती हैं या जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उतनी ही हमारे पास मिन टर्म्स होती हैं एंड जितनी हमारे पास मिन टर्म्स होंगी हर एक मिन टर्म के लिए के मैप में एक सेल होगा इट्स मीन कि ट्रुथ टेबल के कॉम्बिनेशन एंड जो हमारे पास के मैप में सेल होंगे वो सेम होंगे. So K-map cell are labeled to both horizontal and vertical movement differ only in one variable. So K-map में आगे आप देखेंगे कि हम लेबल करेंगे और हम उसको वर्टिकली भी लेबल करेंगे मैप को एंड हॉरिजेंटली भी लेबल करेंगे. एंड के मैप में हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो टेबल में आउटपुट की वैल्यू है जहाँ पे भी आउटपुट 1 होगा जिस भी मिड टर्म के लिए आउटपुट 1 होगा वो एंट्रीज हम के मैप में पुट करेंगे इफ द एक्सप्रेशन इज गिवन इन एसओपी फॉर्म और उसको हम स्केयर्स बना के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के उसको सिंप्लीफाई करेंगे. एंड एक और बात क्या है कि हमारे पास जो एडजेसेंट सेल जो होते हैं वो डिफर इन ओनली वन वेरिएबल. हमारे पास जिस तरह ग्रे कोड होता है ग्रे कोड में क्या होता है कि हमारे पास हर एक टर्म से दूसरी टर्म में जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक जो वेरिएबल होती है या एक वन बिट जो होती है वो चेंज होती है. सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट जो है वो के मैप में यूज किया हुआ है. के मैप में भी जब आप लेबल करेंगे तो व्हेन यू मूव फ्रॉम वन लेबल टू एन अदर लेबल सो आपको सिर्फ एक जो बिट है वो चेंज करनी पड़ेगी. उसका एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास फिर जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं और जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं अगर के मैप में हमारे पास एडजेसेंट सेल जो होंगे वो डिफर करेंगे बाय ओनली वन वेरिएबल. So a two variable map required 4 cells. This is a two variable map in which A and B are the variable or the input variable. A three variable map will require 8 cells because as we know that when there are three variable then there are total 2 raised to power 3 which is equal to 8 combination in truth table. And similarly 4 variable map will require 16 cells.
as 2 raised to power 4, which is equal to 16. So this is a k-map for a 2 variable, this is a k-map for a 3 variable, and this is a k-map for a 4 variable. The three different k-maps are shown there. So this is a 2 variable map. This 2 variable map has 4 cell, there are 2 rows and 2 columns. So हमारे पास लेट्स सपोज एक वेरिएबल x है एंड एक वेरिएबल y है. सो हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 बनेंगे. इधर हमने x इज इक्वल टू 0 लिया है, ये x इज इक्वल टू 1, सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1. सो हमारे पास फर्स्ट सेल जो होगा वो m0 मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज x0 एंड y0. सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड सेल होगा वो m1 मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज इधर हमारे पास x जो है वो 0 है और इधर y जो है वो 1 है. ये x यहाँ हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है बिकॉज एज वी नो दैट व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन इन मिन टर्म्स we can represent x in a complemented form. So ये हमारे पास x complement into y. सिमिलरली हमारे पास यहाँ x जो है वो एज इट इज है एंड y पे कम्प्लीमेंट है, और थर्ड जो है हमारे पास x एंड y वो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो दिस इज अ m0 मिन टर्म, दिस इज m1 मिन टर्म, दिस इज m2 मिन टर्म एंड दिस इज अ m3 मिन टर्म्स. तो हमारे पास टोटल 2 वेरिएबल से जो आपके पास ट्रूथ टेबल आता है वो 4 कॉम्बिनेशन आता है. उन 4 कॉम्बिनेशन को हमने के मैप में पुट कर लिए, और के मैप में हमेशा हम फर्स्ट जो है वो सीक्वेंस में रखेंगे, फर्स्ट 0 रखेंगे एंड फिर 1. सिमिलरली यहाँ 0 एंड यहाँ 1. क्लियर? So note that the minterm m0 and the minterm m1 are adjacent and differ in the value of variable y. So let's suppose हम इन दो मिनटर्म को देखें, m0 को और m1 को. तो ये जो है इसमें जो हमारे पास एक टर्म जो डिफर कर रही है वो y है, x इन दोनों में सेम है. सिमिलरली अगर आप इस मिनटर्म को और इस मिनटर्म को देखें तो इसमें हमारे पास y कम्प्लीमेंट सेम है और x वेरी कर रहा है. सिमिलरली आप इस मिन टर्म को m2 को और m3 को देखें तो इसमें x सेम है और y जो है वो वेरी कर रहा है. सो इट्स मीन कि हमारे पास जो मिन टर्म हो गए उसमें एडजेसेंट सेल जो है उसमें हर एडजेसेंट सेल में एक वेरिएबल जो है वो वेरी करेगा, एक सेम रहेगा. क्लियर? सो अब आगे हम इसमें जब रेक्टेंगल बनाएंगे, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम के मैप, ये बेसिक स्ट्रक्चर है के मैप का. आप 2 वेरिएबल के लिए जब भी के मैप बनाएंगे तो आप इसी तरह से बनाएंगे. सिमिलरली 3 वेरिएबल के लिए जो के मैप है वो फिक्स है, 4 वेरिएबल के लिए के मैप जो है वो फिक्स है. बाकी जो इसमें चेंज होगा वो अंदर जो आप टर्म पुट करेंगे वो चेंज होगा. लेट्स सपोज आपके पास जो भी आउटपुट होता है, आउटपुट के कोरिस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, स्केयर बनाएंगे, और उन स्केयर से जो है आपके पास जो टर्म आएगी वो रिड्यूस फॉर्म में आएगी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी. सिमिलरली मिनटर्म m0 and minterm m2 differ in variable y. Also minterm m1 m3 differ in the variable x as well. Finally m2 and m3 differ in the value of the variable y. So आप इनके कॉम्बिनेशन जितने भी बना के देख लेंगे, m0 से m1 m1 से 3 इनमें सब में जो है वो एक सिंगल वैल्यू जो है डिफर करेगी. लेकिन अगर हम m1 से m2 की तरफ देखेंगे तो इसमें दोनों वैल्यूज जो है वो डिफर करेंगी. डायगनल में हमारे पास डायगनल्स में दोनों वैल्यू डिफर करेंगी, लेकिन जो एडजेसेंट सेल होंगे जिसा या तो एक्स एक्सिस पे एडजेसेंट हो या वाई एक्सिस पे जो एडजेसेंट होंगे उनमें एक वैल्यू जो है वो डिफर करेगी. बट डायगनल जो है वो दोनों वैल्यू डिफर कर रही हैं, तो डायगनल पे जो वैल्यूज होंगी उनको हम एडजेसेंट कंसीडर नहीं करेंगे. So the K-map is a just different form of the truth table. This is a truth table for the 2 variable and this is a K-map for the 2 variable. So इसमें हमारे पास truth table में ये input है and this is the output. So हमारे पास जो first output होगी उसको हम फर्स्ट सेल में रखेंगे. सिमिलरली सेकंड आउटपुट को हम सेकंड सेल में रखेंगे बिकॉज जो हमारे पास सेकंड आउटपुट है उसकी मिन टर्म जो बनेगी वो x कम्प्लीमेंट इंटू वाई बनेगी. सिमिलरली लेट्स सपोज हमारे पास जो लास्ट आउटपुट है d उसको हम लास्ट सेल में रखेंगे, उसकी हमारे पास जो मिन टर्म बनेगी वो बनेगी x इंटू वाई बिकॉज हमारे पास मिन टर्म में जहाँ x इज इक्वल टू 0 होता है उधर कम्प्लीमेंट लेते हैं, और जहाँ x इज इक्वल टू 1 होता है उसको एज इट इज लेते हैं. तो ये हमारे पास यहाँ लास्ट जो मिन टर्म बनेगी वो x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट होगी. सो लेट्स सपोज ये आउटपुट है
ये आउटपुट ए बी सी डी से रिप्रेजेंट की हुई है। बेसिकली यहाँ पे आउटपुट जो होगी ये 0 या 1 की फॉर्म में होगी। सो यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू 1 आ रहा है और बाकी सारे 0 हैं तो यहाँ सिर्फ 1 आएगा, बाकी ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे। सिमिलरली लेट्स सपोज हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है एंड d इज इक्वल टू 1 है, बाकी b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारे पास है 1 एंड b हमारे पास है 0। लेट्स सपोज c भी हमारे पास है 0 एंड d इज इक्वल टू हमारे पास है 1। क्लियर? तो सिर्फ इधर 1 आएगा, इस a में हम यहाँ 1 पुट करेंगे एंड d इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और उसके बाद जो है हम रेक्टेंगल बनाएंगे। इसमें के मैप में क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज आउटपुट ये वाला हमारे पास आउटपुट गिवन होती है, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में आउटपुट गिवन होगी या ट्रूथ टेबल की फॉर्म में आउटपुट गिवन होगी। दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में हमारे पास आउटपुट जो है वो गिवन होगी। और अगर हमारे पास आउटपुट गिवन है तो हम इस आउटपुट को पुट करेंगे के मैप में। के मैप में लेट्स सपोज हमने इस तरह से पुट कर लिया, उसके बाद रेक्टेंगल बनाएंगे। एडजेसेंट जो सेल होंगे उनके हम रेक्टेंगल बनाएंगे। डायगोनल में हम कभी भी रेक्टेंगल नहीं बना सकते। इस केस में हमारे पास रेक्टेंगल जो बनेगा वो एक सेल का बनेगा और इसमें एक अलग सेल का बनेगा, क्योंकि इसमें ये दोनों 1 जो हैं वो एडजेसेंट नहीं है। तो इस केस में हमारे पास जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन आएगी वो एज इट इज आएगी। उसको हम इट्स मीन के अगर जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन थी, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में, इससे इक्वेशन क्या आएगी, x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट प्लस xy। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी इक्वेशन सेम रहेगी। इट्स मीन के वो इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती थी। बट लेट्स सपोज अगर यहाँ पे इधर 1 आ जाता है, इस जीरो की जगह, इस जीरो की जगह 1 आ जाता है, सो इट्स मीन b इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ 1 आ जाता है तो हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकेगी। इसमें के मैप में हम करते क्या है कि रेक्टेंगल बनाते हैं। इसमें हम इन दो का रेक्टेंगल बनाएंगे, इन दो वैल्यूज का रेक्टेंगल बनाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट है। और हर एक जो भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे उससे आपके पास एक टर्म आएगी। क्लियर? आप जब इन दोनों का रेक्टेंगल बनाएंगे तो इसमें से आप जो कॉमन टर्म है वो लिखेंगे, बाकी जो सेकंड टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। लेट्स सपोज इस रेक्टेंगल से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सिंपल आएगी x। क्लियर? y और y कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। सो एक रेक्टेंगल से हमारे पास एक टर्म आती है, इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x और एक रेक्टेंगल बनेगा यहां से, ये वाला। क्लियर? इससे भी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, जो भी कॉमन टर्म होगी वो हम लिखेंगे और बाकी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब आप इसमें देखें कि इस वाली में हमारे पास मिन टर्म जो बन रही है वो x कम्प्लीमेंट y और x इंटू वाई। तो हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो y है, y इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इधर x इज इक्वल टू 0 है और इधर x इज इक्वल टू 1 है। तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिंपल इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो y आएगी। बिफोर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो इक्वेशन थी सम ऑफ मिन टर्म की, अगर एसओपी फॉर्म में मैं इक्वेशन लिखूं तो हमारे पास था x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट, क्लियर, प्लस x कम्प्लीमेंट इंटू y, सेकेंड x कम्प्लीमेंट इंटू y प्लस x इंटू वाई विच इज इक्वल टू ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन थी ये सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन थी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यूजिंग के मैप टेक्निक, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो x प्लस वाई आई है। अगर लेट्स सपोज इसको मैं बुलियन आइडेंटिटीज से सिंप्लीफाई करती हूँ तो भी हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई आएगी। ये जो इक्वेशन आई है ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई है यूजिंग के मैप। इसमें के मैप में क्या हुआ है कि हमने सम ऑफ मिन टर्म किया, तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा या जो भी आपके पास इक्वेशन होगी तो या तो इस फॉर्म में आपके पास गिवन होगी सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में या ट्रुथ टेबल गिवन होगा। दोनों में से कोई एक भी फॉर्म होगी तो आप के मैप में वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपके पास ट्रुथ टेबल गिवन है तो इसमें भी से आप देख के यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अगर आपके पास ट्रुथ टेबल नहीं गिवन, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो मिन टर्म इधर है वो m0 है, दिस इज m1 एंड दिस इज m3, और ये m0 पे पुट कर देंगे m1 पे और m3 पे।
जैसे आपके पास यहाँ पे ये M0 है, ये M1, M2 एंड M3, तो उधर आप 1 1 पुट कर देंगे और उसके बाद रेक्टेंगल बनाएंगे। हमेशा रेक्टेंगल जो है उसके कुछ रूल होंगे, वो आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे कि हम जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कवर करते हैं। हर एक रेक्टेंगल में एटलीस्ट वन टर्म जो होती है वो यूनिक होनी चाहिए, और जो आपके पास ये रेक्टेंगल बनाएंगे इनमें सेल जो है वो 2 2 या n में होने चाहिए। इट्स मीन कि या तो आप 2 सेल्स को कंबाइन करके रेक्टेंगल बना सकते हैं, या 4 सेल को कंबाइन करके रेक्टेंगल बना सकते हैं, या 8 सेल को कंबाइन करके रेक्टेंगल बना सकते हैं, या 16। आप 3 सेल को 5 सेल को कंबाइन करके रेक्टेंगल नहीं बना सकते। क्लियर? ये रूल जो है आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ये है कि जब आप के मैप से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फर्स्ट क्या करेंगे कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कवर करेंगे। क्लियर? ये तीनों रूल एट अ टाइम आप फॉलो करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ वन should be covered in a rectangle. सेकंड क्या है, there should be at least one term unique in each rectangle. हर एक रेक्टेंगल में एक टर्म यूनिक होनी चाहिए। और हमारे पास थर्ड क्या है, the size of the rectangle must be in the power of 2. इट्स मीन के या तो हमारे पास 2 सेल को कंबाइन करके रेक्टेंगल बनाएंगे, या 4 सेल को, या 8 सेल को, या 16 सेल को। वो फिर आगे फर्दर आप डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो हमने सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास एक हमने रेक्टेंगल बना लिया ये। क्लियर? और एक हमने रेक्टेंगल बना लिया ये वाला। इससे जो हमारे पास कॉमन टर्म थी वो x थी। हर एक रेक्टेंगल से हमारे पास एक टर्म आएगी। इससे हमारे पास टर्म आ गई x, और इस वाले रेक्टेंगल से हमारे पास टर्म आ गई y, और उन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे विद और गेट। क्लियर? अगर लेट्स सपोज इसको मैं बुलियन आइडेंटिटीज यूज करके सिंप्लीफाई करती, तो मैं फर्स्ट में से x कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेती, मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म बचती वो y प्लस y कॉम्प्लीमेंट रहती। क्लियर? सेकंड टर्म में एज इट इज लिख रही हूँ x इंटू वाई। मैंने फर्स्ट टू टर्म में से x कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, बाकी जो रिमेनिंग टर्म हुई वो y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। एज वी नो दैट y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1। आप बुलियन आइडेंटिटीज के अगर आप रूल पढ़ चुके हैं तो आपको मैंने ये बड़ी डिटेल में वहां एक्सप्लेन किया हुआ है कि y प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास टर्म जो है ये 1 की इक्वल होगी। डॉट डॉट मीन एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, डॉट 1। एंड एक हमने सेकंड रूल पढ़ा था कि x डॉट 1 और x कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 या कोई भी टर्म हो a b c डॉट 1 विच इज इक्वल टू 1, सॉरी विच इज इक्वल टू x। क्योंकि आप किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल एज इट इज रहेगा, तो विच इज इक्वल टू x। क्लियर? हमारे पास ये टर्म आई। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि अब देखें इस टर्म में आगे हमारे पास, हमें पता है कि इस इक्वेशन का जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो हमारे पास x प्लस वाई है। बट इस केस में अभी भी ये सिंप्लीफाइड आंसर नहीं है। ठीक है, ये वाला जो ये आंसर है सम ऑफ मिनटर्म की फॉर्म में, और ये है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, बट ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। उस पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाएंगे। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि अगर आपके पास यहाँ x या x कम्प्लीमेंट हो और प्लस के बाद आपके पास एक्स वाई, या दैट सपोज यहाँ अगर x है तो यहाँ x कम्प्लीमेंट हो, यहाँ अगर x कम्प्लीमेंट है तो यहाँ x हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा के फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे x, इसको कंसीडर करेंगे y, और इसको कंसीडर करेंगे z। तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाएंगे तो x प्लस वाई, इट्स मीन x कम्प्लीमेंट प्लस y इंटू x कम्प्लीमेंट प्लस y। Clear? As we know that x complement, sorry, x complement plus x and x complement plus x and x complement plus y. So as we know that x complement plus x which is equal to 1, ये फिर 1 हो जाएगा, and 1 dot any variable which is equal to that variable. So 1 dot x complement plus y which is equal to x complement plus y. तो देखें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर आपने बुलियन आइडेंटिटीज को यूज करके सिंप्लीफाई किया तो भी आंसर आएगा, और अगर आप के मैप को यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे
तो उसमें आपने क्या किया है कि कॉमन टर्म देखनी है। अब इसमें आपके पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी एक्स कम्प्लीमेंट एंड वाई कम्प्लीमेंट, एक्स कम्प्लीमेंट एंड वाई। क्लियर? तो कॉमन टर्म जो है एक्स कम्प्लीमेंट है। सिमिलरली इस वाले रेक्टेंगल में जो कॉमन टर्म है वो वाई है, तो एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई, दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम है। बट हमारे पास के मैप जो होता है वो एग्जैक्ट या सिंप्लीफाइड वर्जन देता है। बट हमारे पास बूलियन अलजेब्रा या बूलियन आइडेंटिटीज से जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो मे बी आपका जो आंसर हो वो आपको लगे कि ये सिंप्लीफाई हो गया, बट वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता हो। तो बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास थोड़ी सी एम्बिग्युइटी जो है वो रह जाती है। So in this slide, these are the group of one cell for the two variable K map. इसमें हमारे पास हमने दिखाए में कि लेट्स सपोज हमारे पास ट्रुथ टेबल की जो आउटपुट है वो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। इट्स मीन के दो इनपुट वाइड्स हैं तो उस पर 4 वैल्यूज आ सकती हैं, या तो एट अ टाइम 0 0 आएगी, या 0 1, या 1 0, या 1 1। सो उन 4 में से लेट्स सपोज एट अ टाइम सिर्फ एक 1 हो आउटपुट और बाकी पे सब पे 0 हो, तो हमारे पास पॉसिबल जो ग्रुप बनेंगे के मैप में वो ये बनेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट मिन टर्म 1 है, बाकी सारी 0 है। सो हमारे पास फर्स्ट मिन टर्म एक ही मिन टर्म होगी तो एक ही सिंगल हमारे पास स्केयर बनेगा। अच्छा, जो स्केयर का था उसमें यही था कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कवर करेंगे। देयर शुड बी एटलीस्ट वन टर्म यूनिक इन ईच स्क्वायर और रेक्टेंगल। और थर्ड हमारे पास क्या था, द साइज ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी इन पावर ऑफ 2। देखिए ये पावर ऑफ 2, 2 रेज टू पावर अगर हम 0 लेते हैं तो 1 बनता है। सिमिलरली हमारे पास रेक्टेंगल 1 का भी बन सकता है। 2 रेज टू पावर जब हम 1 लेंगे तो 2 का रेक्टेंगल भी बन सकता है। सिमिलरली 2 रेज टू पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 4 बनेगा, 4 का रेक्टेंगल बन सकता है। 2 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, तो रेक्टेंगल का साइज जो है शुड बी 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। क्लियर? इससे जो हमारे पास सिंगल ग्रुप ऑफ वन सेल है, इसमें जो हमारे पास मिन टर्म बनेगी वो बनेगी एक्स कम्प्लीमेंट एंड वाई कम्प्लीमेंट। इट्स मीन कि जब हमारे पास सेल सिर्फ वन सेल का बनेगा तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हुई। इसमें हमारे पास बिफोर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन यही थी और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी इक्वेशन हमारे पास यही होगी। सिमिलरली हमारे पास लेट्स सपोज जो ट्रुथ टेबल था ये वाला, इसमें सिर्फ हमारे पास m जो ये वाली टर्म है m1 की टर्म वो 1 है, बाकी ये भी 0 है एंड ये भी 0 है। उस केस में हमारे पास जब हम के मैप में पुट करेंगे तो एक सेल का वेरिएबल बनेगा। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कब रिड्यूस होंगी या कब सिंप्लीफाइड आंसर आएगा, जब मिनिमम या एटलीस्ट 2 सेल का हमारे पास रेक्टेंगल बने। अगर हमारे पास रेक्टेंगल सिंगल सेल का बनेगा तो उस केस में हमारे पास कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर होगा वो सिंप्लीफाइड नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। इसमें हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट वाई होगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी यही इक्वेशन होगी और बिफोर सिंप्लीफिकेशन भी इक्वेशन भी रिमेन द सेम। सो अगर हमारे पास सिर्फ ये m0 मिन टर्म है, ये m1 मिन टर्म है, दिस इज m2 मिन टर्म एंड दिस इज m3 मिन टर्म। अगर हमारे पास m2 मिन टर्म इज 1 एंड बाकी सारी 0 है तो हमारे पास एक्स वाई कम्प्लीमेंट बनता है। सिमिलरली हमारे पास सिर्फ लास्ट वाला जो टेबल में ट्रूथ टेबल में ये वाली एंट्री है ये 1 है, बाकी ये भी 0 है, बाकी तीनों 0 है। तो जब हम के मैप में इसमें पुट करेंगे तो इधर 1 आएगा, बाकी सारी 0 होंगी। और जब हम के मैप को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम सम ऑफ मिन टर्म की नॉर्मली सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। आगे आप देखेंगे कि आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हैं। जब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम इनको कंसीडर करेंगे। इट्स मीन कि आप जो के मैप से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपके पास इक्वेशन आती है वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होती है। बिफोर सिंप्लीफिकेशन द इक्वेशन इज इन सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द इक्वेशन इज इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो उसमें हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है, सिंप्लीफाइड वर्जन होती है सम ऑफ मिन टर्म का। उसमें भी हम सम कर रहे होते हैं प्रोडक्ट फॉर्म का, और प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है कि इट्स मीन एंड गेट यूज हो रहा है, और मिन टर्म में भी एंड गेट यूज होते हैं। So this is an example in which two minterms are one at the same time. Let's suppose हमारे पास m0 minterm और m1 minterm at a time जो है हमारे पास ये 1 है। उस केस में हमारे पास क्या होगा कि रेक्टेंगल जब हम बनाएंगे तो अगर तो लेट्स सपोज आप इसका अलग रेक्टेंगल बना देते हैं तो इसका अलग रेक्टेंगल बना देते हैं और इन दोनों को सम कर लेते हैं तो आपका जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट होगा वो सेम रहेगा। इट्स मीन कि वो सिंप्लीफाई नहीं हुआ, नंबर ऑफ गेट्स या नंबर ऑफ लिटरल्स जो हैं वो रिड्यूस नहीं हुए।
तो जब भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो द साइज ऑफ रेक्टेंगल शुड बी in power of 2. There should be at least one term unique in each rectangle. And third क्या है कि maximum number of one should be covered in rectangle. So हमारे पास देखें जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कवर होंगे, पहले ये देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस जो हैं ये दोनों कवर हो रहे हैं, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे इन दोनों का। क्लियर? इन दोनों का रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं। हर एक रेक्टेंगल से एक इक्वेशन बनती है, इसमें इस केस में हमारे पास रेक्टेंगल ही एक बन रहा है, तो इक्वेशन में जो हम टर्म लिखते हैं वो कौन सी लिखते हैं, जो दोनों सेल में कॉमन हो। क्लियर? अब इसमें भी कॉमन क्या है, एक्स कम्प्लीमेंट, इसमें भी कॉमन क्या है, एक्स कम्प्लीमेंट। अगर आप देखें तो हमारे पास हॉरिजेंटली जो कॉमन होगा इधर वो होगा एक्स कम्प्लीमेंट कॉमन, इधर कॉमन क्या होगा एक्स। सिमिलरली वर्टिकल अगर आप देखें तो इधर कॉमन होगा वाई कम्प्लीमेंट और इधर अगर आप कॉमन देखेंगे तो वाई होगा। क्लियर? तो इसकी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स कम्प्लीमेंट। इसमें इक्वेशन देखें, लेट्स सपोज z इज इक्वल टू z विच इज द आउटपुट को हमने किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो z इज इक्वल टू हमारे पास x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट प्लस xy कम्प्लीमेंट। ये एक्सप्रेशन जो है सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में है जो कि हमने डायरेक्टली ट्रूथ टेबल से ड्राइव किया हुआ है। फिर इसको हम के मैप में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स कम्प्लीमेंट। इसमें दोनों मेथड से किया हुआ है कि हमने के मैप से जब पुट करके सिंप्लीफाई किया तो एक्स कम्प्लीमेंट आया, और बुलियन एक्सप्रेशन अगर हमने इसमें यूज किया तो भी हमारे पास आंसर एक्स कॉम्प्लीमेंट आया। बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होगा कि इसमें से और इसमें से हम दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, वाई कॉम्प्लीमेंट। सॉरी यहाँ सही नहीं लिखा हुआ, यहाँ हम कॉमन ले लेंगे वाई कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये इधर जो है ये यहाँ मिस्टेक हुई भी है। यहाँ पे हमारे पास इसमें देखें कॉम्प्लीमेंट एक्स पे और यहाँ हमने वाई पे यूज किया हुआ है। सो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई। क्लियर? हमारे पास जो यहाँ टर्म बनेगी यहाँ पे जो हमारे पास टर्म बनेगी वो बनेगी हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट। हमारे पास दो टर्म होंगी, इनमें से जब हम कॉमन लेंगे एक्स कम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा वाई कम्प्लीमेंट प्लस वाई। एज वी नो दैट वाई प्लस वाई कम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स कम्प्लीमेंट। अगर आप देखें के मैप में भी हम लेते हैं तो एक्चुअल में हम इन दोनों सेल का ले रहे होते हैं ना, इससे हम एक रेक्टेंगल बना रहे होते हैं। तो अगर हम इसे रेक्टेंगल बनाते हैं या इन दोनों सेल को हम सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में अगेन लिखेंगे तो उसमें हम कर क्या रहे होते हैं कि इसमें ये वाली टर्म है और इससे हमारे पास ये वाली टर्म आई है, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है एक्स कम्प्लीमेंट, और बाकी क्या बच रहा है वाई कम्प्लीमेंट प्लस वाई। एज वी नो दैट वाई कम्प्लीमेंट प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट आंसर आता है। सो के मैप से भी आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आएगा वो एक्स कम्प्लीमेंट होगा और आफ्टर बुलियन एक्सप्रेशन भी एक्स कम्प्लीमेंट ही आएगा। के मैप जो होता है वो ये गारंटी होती है के मैप से अगर आप किसी भी सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके पास सिंप्लीफाइड वर्जन जो भी होगा वो सिंपलेस्ट होगा, उससे फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन बुलियन आइडेंटिटीज में मे भी आपके पास जो आंसर आ रहा है उसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि मे भी आपको लग रहा हो कि इस आइडेंटिटी के बाद इस पर कोई फर्दर आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, बट मे भी उस पर हो सकती हो, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी उस पर प्रैक्टिस कितनी है। सिमिलरली हमारे पास z आउटपुट विच इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? सो दीज आर द पॉसिबल group of two for the two variable k map.
अगर लेट्स सपोज हमारे पास इसमें हमने दिखाया था कि लेट्स सपोज आउटपुट पे सिर्फ एक मान है, बाकी तीनों जो है वो 0 हैं, तो हमारे पास पॉसिबल ये कॉम्बिनेशन बनेंगे और के मैप से अगर आप इक्वेशन निकालेंगे तो इस तरह से इक्वेशन आएगी। सिमिलरली अगर आप के पास आउटपुट पे 4 आउटपुट टोटल 2 अगर आपके पास इनपुट हैं तो टोटल जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 बनेंगे और हर एक कॉम्बिनेशन के कोरिस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होगी। तो जो हमारे पास 2 वेरिएबल की आउटपुट आएगी उसका हम इस तरह से रेक्टेंगल बना लेंगे। क्लियर। लेट्स सपोज हमारे पास m0 मिनटर्म और m1 मिनटर्म एट अ टाइम 1 है, तो इसका हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। क्लियर। और जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा x कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली m0 और m2 मिनटर्म अगर आपके पास 1 है तो ये रेक्टेंगल बनेगा और इसमें जो आपके पास कॉमन है वो y कॉम्प्लीमेंट है, x और x कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास m2 एंड m3 1 है तो आपके पास कॉमन क्या आएगा x। सिमिलरली आपके पास अगर m0 है, ये m1 और m3 1 है तो आपके पास कॉमन क्या आएगा y। क्लियर। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाए हुए हैं कि अगर आपके पास एट अ टाइम आउटपुट पे दो वैल्यूज 1 है तो आपके पास इक्वेशन जो है फॉर 2 वेरिएबल इक्वेशन जो है आपके पास क्या क्या आ सकती हैं। बिफोर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास इसमें इक्वेशन थी उसमें टर्म्स दो थी, एक x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट प्लस x कम्प्लीमेंट y, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास सिंगल टर्म जो है वो रही है विद सिंगल वेरिएबल। क्लियर। सिमिलरली दिस इज एन एग्जांपल in which there are 4 output 1 at the same time। जब हमारे पास चारों आउटपुट 1 होंगे एट द सेम टाइम तो हमारे पास जो इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि हमारे पास इसमें अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल क्या क्या था कि द साइज ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी इन पावर ऑफ 2। देखें अगर रेक्टेंगल बना रहे हैं उसमें साइज ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी इन पावर ऑफ 2, इट्स मीन कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल कितने 4 है। क्लियर। और एटलीस्ट वन टर्म यूनिक इन ईच रेक्टेंगल, इसमें भी वो वाला केस नहीं आया। और हमारे पास थर्ड क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वन शुड बी कवर इन ईच रेक्टेंगल, इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कवर करेंगे तो हमारे पास ये y और ये y भी कैंसिल हो जाएगा, ये x कम्प्लीमेंट और x भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल आएगा वो 1। अगर इसमें लेट्स सपोज हम दो रेक्टेंगल बनाते हैं, एक इसको यूज करके, इसमें लेट्स सपोज हम एक ये रेक्टेंगल बना लेते हैं और एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं ये। क्लियर। हॉरिजेंटली बना लें या वर्टिकली दो रेक्टेंगल बना लें तो इससे जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएगी, आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस तरह से हम क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एक रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। हमारे पास फर्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वन शुड बी कवर इन ईच रेक्टेंगल। अब देखें इसमें एडजेसेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ वन शुड बी कवर इन ईच रेक्टेंगल, एडजेसेंट जितने भी वन थे उनको कवर करना था, इसने ये तो दो कवर कर लिए बट ये इसके एडजेसेंट है और ये इसके एडजेसेंट है, इट्स मीन के ये चारों कवर होने थे। तब हमारे पास आंसर जो है वो 1 आना था सिंप्लीफाइड वर्जन या सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अभी अगर हम दो रेक्टेंगल बना लेंगे और उससे हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x कम्प्लीमेंट उससे आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x कम्प्लीमेंट, इसकी वजह से कॉमन है, प्लस x, and as we know that x plus x complement which is equal to 1, it's mean कि rectangle जब हम बनाएंगे तो maximum number of one should be cover, तो इन चारों को combine करके एक rectangle बनेगा। क्लियर। सिमिलरली अगर आप y इस तरह से वर्टिकली रेक्टेंगल दो बना लें तब भी आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। तो के मैप को अगर आप सही से यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। So we will discuss this example in our next video lecture. We will continue from here.